Hello everyone, welcome to AptiPlus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis, where the news will be covered from the Hindu and Indian Express. So I'll try to cover the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing the content with some relevant information that can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the news first. So these are the list of the topic for the day. Today is 9th of March. The first topic is new umbrella entities, that is the payment ecosystem in India. The second is Supreme Court seeks state views on the reservation policy. The third is panel for tweak in the rail passenger fares. And the second last topic is 102 amendment of the NCPC, that is a National Commission for Backward Classes. And the last is ensuring trust in the electoral process, right? So these are some of the important editorial, article and news that has been reported in today's newspaper. Apart from this, we'll have some MCQs question at the end of this session. So this MCQs is specifically meant to address the questions that can be possibly asked in the upcoming prelims examination. So make sure you practice this question so that you could ensure that these questions are going to help in the prelim examination as well. So starting with the first news, that is new umbrella entities and payment ecosystem, that is called NUE. So the news has been reported in Indian Express, and it is important for your general studies paper 2 in the government policies and intervention for the development in sector and issues arising from it. And NUE is again very important for the prelims examination. There can be a 2-statement question that they can ask in the exam. So recently the RBI, that is Reserve Bank of India, has released a document जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि एक फ्रेमवर्क बनाई जाएगी जो कि ऑथोराइज करेगी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज NUEs को फॉर ऑल रिटेल पेमेंट्स, राइट. एज ऑफ नाउ वी हैव NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सारी पेमेंट्स को देखती हैं, राइट. विल डिस्कस दिस ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. बात करें अगर RBI की, RBI ने एक डेडलाइन रखा है टू come up with the framework. So that is 31st of March 2021. So within this framework, the expert committee has to submit, and all the applicants who are supposed to be the part of national umbrella entity, they definitely have to apply through the applications. Now अगर बात करें NUE की, so this idea was basically mooted by Reserve Bank of India to create an alternative mechanism of existing payment. जो अभी NPCI सारे payments को देखती है, आप जो भी payment करते हैं, whether it is UPI or whether it is post point of sale payments होती है, so entire things is being taken care by the NPCI. तो NPCI को बहुत ज़्यादा burden भी होता है एक single entity होने की वजह से. So they are asking कि कोई भी retail payments है वहाँ पे एक dedicated एक umbrella entities होगी जिसका नाम होगा new umbrella entities. Now what are NUEs? Basically as you told you, this was envisaged by the RBI, और NBEU जो है that would be a non-profit entity, would be set up, manage and operate for the payment system in the country. Especially retail spaces में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, such as ATM, white label point of sale, POS stand for point of sale, आधार based payment and remittances services. So खास करके NUE की जो सर्विसेज है वो यहाँ पे इस एरिया पे ज़्यादा ब्रॉडली फोकस करेगी. सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एज एन एग्जाम्पल. और उसके अलावा जो NUE है that will be developed as a new payment method for standardizing and technology that would operate the clearing and settlement system in the country. So definitely अगर आपसे इसके एडवांटेज पूछे जाए मेंस में, तो आप बता सकते हैं कि इसके एडवांटेजेस ये होगी कि जो रिटेल पेमेंट सिस्टम है वो पैरेलली चल सकती है और दूसरे पैरेलल जो हमारी पेमेंट सिस्टम है कंट्री में, और एक डेडिकेटेड सेटलमेंट सिस्टम होगी पेमेंट के लिए जो कि सिर्फ रिटेल को कैटर करेगी, राइट. Now eligibility criteria क्या होंगे? So ऐसे entity those are owned and controlled by the Indian citizen and at least है उनके पास 3 year की experiences जिन पे होगी for the payment segments. They would be becoming the promoters of the NUE. So these are the eligibility criteria that has been set by the government of India. और कोई भी foreign investment allow होगी NUE में as long as they can comply with the existing guideline. So if they fulfill the criteria that is set by the government, they would be able to come to India and make the investment as such. Now demand for NUEs की अगर बात करें, so according to reports, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने बैंक्स के साथ टाई अप किया है जो मेजर प्लेयर्स हैं NUEs में. उसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, along with Facebook and Google, they have invested in the Jio platform and they are planning to apply for a consortium. उसके अलावा जो टाटा ग्रुप है, like Tata Group is again one of the biggest group in India.
So what they are doing, so they have joined hand with the HDFC and Kotak Mahindra Bank for the Mastercard. What they would be doing, so they would be basically HDFC हो गई, कोटक महिंद्रा बैंक हो गई, मास्टर कार्ड हो गई और भारती एयरटेल है. So they are joining hand with the Tata Group, right? So two parallel industries, one is Reliance and other is Tata Group. Now among the other major player e-commerce की अगर बात करें तो Amazon had tie up with the Visa, ICICI Bank, Axis Bank and fintech startup Bilkdesap. पाइन लैब्स भी आपने सुना होगा, पाइन लैब्स के साथ ये NUE के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, राइट. नाउ लास्टली सॉफ्ट बैंक पोर्टफोलियो कंपनीज Paytm, Ola have reportedly joined the hand to apply for the NUE, right? So definitely they would be joining hand, और ये सारी चीजें जो हैं that would be making the retail system more robust and more clear, right? Now what is the need for NUEs? क्यों जरूरत पड़ी है NUE की और गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज क्यों बना रही है? Definitely that would be augmenting the retail payment system, but currently अगर बात करें तो जो एक umbrella entity है that is NPCI, National Payment Corporation of India. So this is only the non-profit organization that is owned by the bank, और NPCI जो है वो ऑपरेट करती है सेटलमेंट सिस्टम एज एन UPI, AAPS, रुपे, फास्टैग एटसेट्रा, राइट. सो पूरा बर्डन जो है अभी सारा NPCI पे ही है. एंड टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स इन द पेमेंट स्पेसेस, दे हैव इंडिकेटेड कि जो बहुत सारे पिटफॉल्स हैं NPCI के, दैट इज बीइंग ओनली एंटिटी मैनेजिंग द ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, राइट. So definitely we require someone to take care of the retail payment so that the burden should be lessened to this, right? So this is something, this was a need that the NUE has come up in India by the RBI. So this was all about the NUE. नाउ आरबीआई की अगर प्लान की बात करें तो उन्होंने कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप करने की बात की थी, सो दैट जो पेमेंट सिस्टम है दैट एम्स टू एक्सपैंड द कम्पिटिटिव लैंड बेस इन दिस एरिया, और जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी है दैट एम्स टू गेट एन इवन बिगर शेयर इन द डिजिटल पेमेंट सेक्टर. सो डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रॉम मेंस एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव बोथ इज इंपॉर्टेंट हेयर. आपसे दोनों के बारे में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक होलिस्टिकली. इफ इट इज आस्क्ड इन द मेन ऑल्सो यू कैन ईजिली एबल टू कोप अप विद द आंसर्स. Now, the Supreme Court seeks state reviews on the basically reservation policies जो है, because this is a decade old policies. तो यहाँ पे state की जो खास करके जो views है Supreme Court ने वो जानने की कोशिश की है. So General Studies Paper 2, Welfare Schemes for the Vulnerable Section of the Society, and this would be more important for your mains examination, right? तो mains के perspective से आप इसको देखें. So the Supreme Court has recently decided कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनके जो ओपिनियन है वो पूछेगी जो 3 ईयर ओल्ड डीके है उसके बारे में, जो रिजर्वेशन पॉलिसी इंडिया में चल रही है उसको, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो 50% के आसपास रिजर्वेशन दी जा रही है उसको क्या रीलुक करने की ज़रूरत है. दैट नीड टू बी रिवैम्प्ड बिकॉज दिस जजमेंट वॉज देयर इन 1992, जहाँ पे एक 9th बेंच जज ने लक्ष्मण रेखा यू कैन कॉल इट, जहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी जॉब्स एजुकेशन के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में देने की बात कही थी, राइट. हाउएवर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र की बात करें, तमिलनाडु की, एंड रूबिकॉन हैव पास्ड द रिजर्वेशन अलाउइंग अप टू 60%, राइट. एक एग्जाम्पल है जो मराठा कोटा लॉ की अगर बात करें तो यहाँ पे अशोक भूषण की कमिटी थी जस्टिस की. They have said that they would be hearing the Maratha quotas and decide not to confine the question on reservation spilling over 50% of the limit just to Maharashtra, right? सिर्फ एक एरिया में कन्फाइंड नहीं होगी बट इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है. बट बेंच ने ये क्लियरली कहा, दे एक्सपैंडेड द एम्बिट ऑफ द केसेस बाय मेकिंग द स्टेट पार्टली एन इन्वेस्टिगेटिव टू द स्टैंड, राइट. तो यहाँ पे ये जरूरी है कि जो रिजर्वेशन है दैट शुड कंटिन्यू एंड रिमेन विद इन द बाउंड्री ऑफ 50%, राइट. सो बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने 60% भी कर दिए हैं, बट अगर आप इंदिरा स्वानी की जो वर्डिक्ट देखेंगे उसमें ये कहा गया था कि जो लिमिट है वो 50% तक फिक्स करनी है, राइट. एंड दैट नीड टू बी रीलुक्ड बाय मोर देन 9 जजेस, राइट. तो वो बेंच थी ऑलरेडी. मैं आपको बताऊंगा कि इंदिरा स्वानी की जो जजमेंट थी उसमें क्या बातें कही गई थी. सो इन इंदिरा स्वानी जजमेंट they categorically said that 50% shall be the rule and only criteria in exception. So exception or extraordinary situation, these are the two tagline that the verdict had used, the judgment has used, to upon which the only reservation can be given. But definitely because of the political will and political motivations and elections to make people
गेटिंग टुवर्ड्स द इलेक्शंस द गवर्नमेंट इज डूइंग इंटेंशनली. सो उन्होंने कहा है किस तरह के जो मेन स्ट्रीम है जो रिजर्वेशन है 50% रूल, वो अगर चाहे तो रिलैक्स हो सकती है मेन स्ट्रीम में, बट इट शुड नॉट बी मूविंग मोर देन 50%. दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन, और वो चाहती है कि स्टेट इसमें अपनी जो ओपिनियन है वो साझा करे और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बताए, या फिर सुप्रीम कोर्ट को एक सबमिटेड एक सील्ड एनवेलप में अपने जो ओपिनियन है वो शेयर करें. Now, panel for tweak in rail passenger fares. Now, after the post-lockdown, railway was again a sector which has suffered a huge loss. So, this is a time to make the profit and recover from the losses. So, this is in light of that only. So, this is important for the General Studies Paper 3, Inclusive Growth and Issues Arising from it. सो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने रेकमेंड किया है रेलवे मिनिस्ट्री को कि आप कुछ प्रूडेंट एडजस्टमेंट करें. प्रूडेंट एडजस्टमेंट का मतलब है कि यू कैन टेक एन एक्शन दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज द नीड ऑफ द आवर टू मेक पैसेंजर फेयर टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द फ्लाइट सेगमेंट, राइट. और कमेटी ने ये भी कहा कि जो एक्चुअल अर्निंग थी रेलवे की वो बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल हुई है. प्रोजेक्टेड सिंस 2016 और 17 में जो चीज़ें प्रोजेक्ट की गई थी उससे अभी कलेक्शन काफ़ी कम है बिकॉज ऑफ कोविड-19. जो पैसेंजर सर्विस थी वो बहुत ही ज़्यादा डिटोरेट हुई थी और बहुत सारे जो ऑपरेशंस थे उसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया था. Now the panel has asked the railway to consider resuming the passenger services to boost their revenues, right? Because at the same time एक ऐसी सेक्टर है खास करके ट्रैवल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर was something that was hugely impacted, right? Hospitality and travel and tourism was hugely impacted. Now post recovery government is also trying to give a leverage to the railway so that they can have a recovery of it. Now कमेटी की और क्या क्या रिकमेंडेशंस थी. कमेटी वर ऑफ द ओपिनियन कि जो बोथ पैसेंजर फेयर और फ्लाइट फेयर है दैट हैव अ डिमांड कम मार्केट ड्रिवन दैट इज फिक्स्ड डिफरेंट बाय द डिफरेंट सेगमेंट. सो ऑल्दो रेलवे में डायनेमिक फेयर प्राइसिंग होती है जिस तरह से फ्लाइट्स में की जाती है, तो रेलवे ने भी अपने जो एक्सप्रेस ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, उनमें डायनेमिक प्राइसिंग रखी है टू मेक श्योर कि कुछ रिकवरीज हो सके. और अगर नेट रेवेन्यू की बात करें तो पैनल ने ये कहा है कि फॉर 5 years द बजट एस्टिमेट्स ऑफ द रेवेन्यू इज बीइंग ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड and revised estimate stage of the particular budget that is nowhere matched to the actual budget. तो बहुत ज़्यादा shortfalls हुई हैं compared to what was expected. And the panel has also added कि जो railway finances है that should be monitored and marginalized prudently by keeping the close constant tabs, right? So this is a time जहाँ पे एक unproductive expenditures के साथ खास करके ऐसे expenditures जिनको control किए जा सकते हैं and a point where the revenue can increase. This should be the need of the hour, and in the future railways should be looking forward to collect more and more revenues. Now operating ratios की अगर बात करें, एक OR होती है रेलवे में. सो कमेटी ने ये कहा था कि जो फाइनेंशियल ईयर 2015 और 16 है उस समय रेलवे की जो OR थी, जो ऑपरेटिंग रेशियोज थी, दैट वाज क्लोज टू 90.5%, राइट. और अभी इन कॉन्ट्रास्ट टू सक्सीडिंग ईयर जो OR है दैट हैज रेगुलरली डेटोरेटेड. 2016-17 में ये जो ऑपरेशन रेशियो थे दे शार्पली राइज टू 96.5%. फिर उसके बाद अगर 18-19 में बात करें इट रोज अप टू 97.27%. एंड 2021 में ये जो एस्टिमेट है दैट इज 131%. नाउ फॉर 2022 ये जो टारगेट की गई है OR के लिए दैट इज 96.15%. दिस नंबर आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट आप एक क्रोनोलॉजी समझ लें क्योंकि अगर आप मेंस में भी लिख रहे हैं तो यू कैन कोट दिस एनी ईयर डेटा, राइट. आप ये लेटेस्ट वाला डेटा ही कोट कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द 102 सेकेंड अमेंडमेंट फॉर NCBC. सो 102 जो अमेंडमेंट लाई जा रही है उसके क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स और गवर्नमेंट इसकी तरफ क्यों मूव कर रही है, विल सी दैट. So this is again important for your general studies paper 2, welfare schemes for the vulnerable section of the population by the center and performance of the schemes. So with the Supreme Court seeking response to the state government on question or interpretation of 102 amendment to the constitution, जो present government है ये इनका कहना है कि they would be amending the power, they have the power, according to the constitution. if you've read Indian polity, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो नोटिफाई कर सकती है किसी भी सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को अंडर द बेसिकली 102 के अंदर वो कोई भी बैकवर्ड क्लासेस जो उनको लगता है वो उनको उस कैटेगरी में रख सकती है. एंड द पार्लियामेंट हैज ऑल्सो एम्पावर्ड टू चेंज द SEBC लिस्ट, राइट. जो सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिस्ट को पार्लियामेंट रिवाइज भी कर सकती है. दे हैव बीन प्रोवाइडेड द पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.
अब पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 102 अमेंडमेंट? बेसिकली जो मेन एम है इज टू गिव स्पेशल पावर टू द कमीशन। एक कमीशन को स्पेशल पावर दी जाएगी जहाँ पे इट विल अलाउ द कमीशन टू अप्रोप्रिएटली एग्जामिन एंड इम्प्लीमेंट द रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी इन द सर्विसेज एंड एजुकेशंस। तो ओबीसी के जो स्टूडेंट कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको सर्विसेज में एंड अदर फॉर द एजुकेशन, फॉर दीज टू थिंग द गवर्नमेंट इज मेकिंग सम अमेंडमेंट एंड एट द सेम टाइम दे आर एम्पावरिंग द एनसीबीसी to take some action and to practically make it possible for implementing this on the services and on the education sectors. Now अगर बात करें NCBC की नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। एक्चुअली इन स्टार्टिंग इट वाज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सो बेसिकली इट वाज फॉर्म्ड अंडर द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड एक्ट 1993. नाउ दिस इज ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ था, सो दैट वाज इनिशिएटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन द कंडीशन, जो डिफिकल्टीज हो रही है सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, उनमें किस तरह से अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस की जरूरत है एंड व्हाट आर द एक्शन दैट नीड टू बी टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. सो द कमीशन वाज इंटरेस्टेड to advise the government, to recommend the government what actually can be done with regards to the people belonging to the social and economic class backwardness, right? Now this is a last editorial which talks about ensuring trust in the editorial process. The editorial has been reported in Hindu and it talks about the इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो ट्रांसपेरेंसी है या क्या क्या चैलेंजेस हैं उसको लेकर के कंटेम्प्रेरीज में विल डिस्कस दैट. सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेलिएंट जनरल स्टडीज पेपर 2 अंडर सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. और जो इलेक्ट्रल प्रोसेस और खास करके जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं दैट कैन बी अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट. तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि दे हैव अनाउंस्ड द डेट फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली. 5 इलेक्शन स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं. नाउ इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न जहाँ पे पेटिशंस फाइल की गई है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम्स को लेकर के, बिकॉज उसमें बहुत सारी बोन ऑफ कंटेंशन है. सुप्रीम कोर्ट में भी चीज़ें अभी पेंडिंग्स हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली बहुत हद तक चीज़ों को क्लियरेंस दी है, बट द स्टेक होल्डर्स, द सिविक सोसाइटी एंड द NGO आर नॉट ऑफ द ओपिनियन कि इसमें ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखा जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा रही है, राइट. सो प्रोविजंस क्या क्या है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम्स के. सो अंडर दिस स्कीम the electoral bond is issued in the nature of promissory note and can be brought an Indian citizen or company incorporated in India, right. और इस स्कीम में पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो रिसीव कर सकती हैं फंड विदाउट पब्लिक, और इलेक्शन कमीशन इनकम टैक्स में उनको कोई भी अपनी आइडेंटिटी देनी नहीं होगी. सो दिस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन एंड अ कंफ्यूजन दैट इज अराइजिंग. स्टेक होल्डर्स आर विलिंग कि अगर जो कॉर्पोरेट हाउसेज है वो किसी भी पार्टी को फेवर कर सकती हैं, और एक ये डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है. इट हैज़ लिमिटेड ओपेसिटी एंड ओपननेस ऑफ द फ्लड गेट, दैट इज़ किस तरह से एनोनिमस डोनेशन आ रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को, विच इज़ नॉट हेल्दी एंड स्पिरिट फॉर द डेमोक्रेसी, राइट. और पीपल की जो एबिलिटी है दैट शुड बी ट्रैक डोनेशंस. जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं, नहीं, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, द बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ बीन आर्ग्यूड, उन्होंने भी, और जो अपोजिशन की तरफ से आर्ग्यू की गई है कि जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो जो भी भारतीय जनता पार्टी है उनको काफ़ी ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं, राइट. But they cannot reveal it because the electoral bond maintain the secrecy of an individual, right. तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं. बाकी जो provisions है, government tend to alter the provisions. So concerns over the electoral bonds, expressing its opposition. जो electoral bond है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने ये कंटेंट किया था कि इसके एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, खास करके जो ट्रांसपेरेंसी है पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग्स में, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, राइट. एंड इम्पॉसिबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू अस्टेन वेदर द डोनेशन रिसीव्ड वेयर द कंप्लायंसेस विद द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग द पॉलिटिकल पार्टीज. तो जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ें बता दी है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम बहुत ज़्यादा सर्विलेंस रख पाएँ इस पर. सो दिस लॉ इटसेल्फ इज़ अ फाउल, राइट. इसमें बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है, बट कंसिडरिंग द फैक्ट इसको मनी बिल की तरह पास किया गया था एंड देयर आर अदर पॉइंट दैट इज़ देयर. सो सुप्रीम कोर्ट टू हैव गिवन द फैक्ट, इस तरह के जो इश्यूज में सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही डिलीजेंटली इसको फॉलो करना पड़ेगा. एंड एट द सेम टाइम दे हैव टू इंश्योर कि जो ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया में वो इलेक्शन कमीशन के अंदर, और सारी सुपरविजन खास करके जो और एम्पावरमेंट है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी बैकिंग करती है तो डेफिनेटली जो हमारे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है उसमें और ट्रांसपेरेंसी आ सकती है.
Now, the other concern of the Election Commission is also about the money laundering. So, because it was already stated by the Election Commission, क्योंकि बहुत सारी जो black money है, large cash flow हो रही है as a donation, which is not healthy for the democracy. एंड इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में बहुत सारी चीज़ें ये आर्ग्यू की गई है कि आप पेमेंट्स जो हैं इधर यू कैन मेक द पेमेंट्स थ्रू चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डायरेक्ट डेबिट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंसेस के थ्रू भी बहुत सारी ब्लैक मनी है जो मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है टू दिस पॉलिटिकल पार्टीज, राइट. सो दिस अलाउ फॉर द ब्लैक मनी to be easily routed through the shell companies to purchase the electoral bonds and apprehension also to expressed by the election commission. तो इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया है कि इस तरह की प्रॉब्लम अराइज हो रही है. एंड इवन जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे हैव फ्लैग्ड अ सीरियस कंसर्न अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, राइट. सो द इंस्टीट्यूशन विच इज देयर विच वुड बी डेफिनेटली फेवरिंग द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द कंट्री. पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती रहती है, बट जो इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, उसको बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से काम करने की जरूरत है इंडिया में, राइट. आप बहुत हद तक यू कैन हैव एन अपॉइंटमेंट टू योर पीपल बिलोंगिंग टू योर माइंडसेट, और आप अपने लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट को फेवर करती है, बट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, राइट. सो आई पर्सनली फील आरबीआई ने अगर कंसर्न रेज किया है, इलेक्शन कमीशन ने कंसर्न रेज किया है, so government should take, or even the Supreme Court has to play a major role in this, right. Because this is in the spirit of the democracy. For a healthy democracy it is required. अगर मान लो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो ये इंस्टीट्यूशंस तो उसके अकॉर्डिंगली फंक्शंस नहीं करेंगे ना. जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपने क्राइटेरियाज, उनके अपने मोटोज हैं, अपने फंक्शंस हैं जो कि डिसाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में. सो अकॉर्डिंगली दे नीड टू वर्क अपॉन इट. सो दो कमीशन ने, आरबीआई ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगर इस तरह की बातें कही हैं तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट शुड टेक द कॉग्निजेंस ऑफ इट एंड अकॉर्डिंगली दे शुड गिव द जजमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. Now, what would be the way forward? क्या इसकी solutions हैं? So, to ensure the public trust electoral process में, एक democratic setup जैसे country में, Supreme Court must immediately adjudicate the matter. उसको जल्दी से जल्द ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देने चाहिए. एंड इवन द बॉन्ड आर रिटेन टू एन इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज. डोनेशन मस्ट बी मेड टू द ट्रांसपेरेंट. जिस तरह से खास करके इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसमें हमारी बहुत हद तक जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन नहीं की जा रही है, एंड वी कैन नॉट ट्रैक द पीपल हु आर गिविंग, राइट. एंड दिस इंफॉर्मेशन मस्ट ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन. अगर पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिल रही है थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड, दे शुड गिव इट टू द पब्लिक डोमेन. And it is necessary to safeguard the democracy and ensure the election not becoming merely a formality. Because जो ये election की जो process है, it is a practice, it's a ritual that is being followed in the democratic setup. तो इसको सिर्फ formality बना के छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. We know the gravity of an election and changing of the government, how efficient it should be and how important it is for the citizen of this country, right? So this was the way forward. Now, moving to the MCQs question of the day. The first question is with regards to the new umbrella entities for the retail payments. We already had a discussion. तो आपको बताना है इसमें से correct option कौन है. Only those entities that are owned and controlled by the Indian citizen with at least 3 years of the experiences in the payment segment can become the promoter of NUE. और इसमें कोई भी foreign bank को allow नहीं किया गया under the existing guideline. So, right. So what you have to do, very easy, you have to just mark the correct answer in the comment section down below. अब इस वीडियो के जो comment section है उसमें अपने correct answer लिख सकते हैं. If you have any explanation, if you want to share any additional details, you can write that in the comment section. Second question with regards to electoral bond, consider the following statement. All nationalized Bank of India are authorized to issue an in-cash bond valid up to 15 days from the date of issuance. And these bonds are remittable and designated account of the registered political parties. So सिर्फ जो political parties registered account होंगे उनमें ही ये redeem की जा सकती है, right? So again, a logical question where you can definitely come up to the conclusion. आपको अगर आप थोड़े से logical reasoning लगाएं यहाँ पे तो you can come up to the conclusion of the answers, right? So do share your answer in the comment section. और इस तरह के questions आपके examination के लिए काफ़ी important है, because this is a time that you should practice more and more question for the upcoming prelims examination, right? And if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services. And if you like this video, if you find this video to be helpful, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.